السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹوری چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 1 تا 9 دسمبر تک عوام میں حکمرانی کا جشن منانے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ سیکریٹریٹ کے روبرو 9 دسمبر کو تلنگانہ تلی مجسمے کی نقاب کشائی۔ ریاست میں جامع سروے 90% مکمل، تفصیلات کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے دوران احتیاط برتیں۔ حیدرآباد میں 70% سروے مکمل، چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ جامع سروے کو لے کر حکومت سنجیدہ، عوام میں کوئی تجسس نہیں، شمار کنندگان سروے سے ناواقف، اردو میں فارمز نہ ہونے سے عوام کو مشکلات۔ اور رات دیر گئے ہوٹلنگ کرنے والوں کو پولیس کی کاؤنسلنگ، دیر سے کھانے کی طبی نقصانات سے کیا جا رہا ہے واقف۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے 1 دسمبر سے 9 دسمبر تک عوامی حکمرانی کا جشن منانے کا اعلان کیا ہے۔ عہدیداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تقریبات کے لیے شاندار انتظامات کریں۔ تمام محکمے ان تقریبات میں شرکت کریں۔ عوام کو حکومت کی پہلے سال کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ مستقبل میں شروع کیے جانے والے منصوبوں کے بارے میں بھی خلاصہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تمام محکموں کے چیف سیکرٹریز اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ عوامی نظم و نسق اور فتح کی تقریبات کے انتظامات پر ہفتے کی رات جائزہ اجلاس لیا۔ اجلاس میں وزراء سریدر بابو، پونم پربھاکر، مشیران حکومت کے شوراؤ، نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری شانتی کماری، DGP جتیندر نے شرکت کی۔
उन्होंने 30 नवंबर को महबूब नगर में मुनक्किद होने वाली किसान कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरी इंतजामात करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि 2 रोज कबल यानी 28 तारीख से किसानों में बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं और इनके लिए नुमाइशी स्टॉल्स लगाए जाएं। वज़ीर आला ने 4 दिसंबर को पेद्दापल्ली जिले में बेरोजगार नौजवानों के साथ एक मीटिंग करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 4 और मुख्तलिफ भर्तियों के जरिए मुंतखब होने वाले 9000 अफराद को एक ही प्लेटफॉर्म पर तकर्रुरी के दस्तावेजात फराहम करने का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि महकमेवार प्रोग्राम 1 दिसंबर से शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के साथ साथ ऐसा मनसूबा बनाया जाए कि इस हफ्ते के अंदर तमाम संग बुनियाद रखने और इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद की जाएं। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि हर वज़ीर पहले साल में किए गए प्रोग्रामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ साथ मुस्तकबिल के लाहे अमल को मीडिया के जरिए अवाम के सामने बयान करे। उन्होंने कहा कि 7, 8 और 9 दिसंबर को पूरी रियासत में त्योहारों का अहतमाम किया जाए। इन 3 दिनों के लिए वज़ीर आला ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट, टैंक बैंड और नेकलेस रोड के अतराफ में तकरीबात के इंतजामात करें, जिससे कि तेलंगाना की तरक्की की झलक नजर आए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में नुमाइश जैसा माहौल बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएं। 3 दिनों तक तेलंगाना की सकाफत और फन की नुमाइश करने वाले प्रोग्रामों के साथ म्यूजिकल शोज, एयर शो और ड्रोन शोज का इनेकाद करने की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने कहा कि तमाम बरदारियों को इसमें शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि रियासत भर के तमाम स्कूलों, हॉस्टलों और कॉलेजेस में अवामी हुक्मरानी की फतह की तकरीबात के इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि गाँव की सतह से लेकर रियासती सतह तक त्यौहार का माहौल बनाया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के दाखिली दरवाजे के सामने तेलंगाना तली के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने का फैसला किया है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना के कारकुनों, दानिश्वरों, तालीम याफ्ता लोगों और मुख्तलिफ शोबों में हुनर हासिल करने वाले तमाम अफराद को इस शाम मुनक्किद होने वाली तकरीबात में मदऊ किया जाना चाहिए। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो हर हल्के के लिए 1000 ख़वातीन नुमाइंदों को मदऊ करें और 1 लाख तेलंगाना माओं की मौजूदगी में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की शानदार नकाब कुशाई करें और मुनासिब इंतजामात करें। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें कि हैदराबाद में 7 से 9 दिसंबर तक मुनक्किद होने वाले त्योहारों के दौरान शहर में ट्रैफिक में खलल ना पड़े। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने शुमार कुनिंदगान से कहा कि डोर लॉक या फिर नक़ल मुकाम करने वाले की तफसीलात हासिल करें। उन्होंने रांची से आला ओहदेदारों और कलेक्टर्स के साथ जामे सर्वे से मुताल्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हिदायत दी हैं। जामे सर्वे में भी कोई बाकी न रहे। उन्होंने कहा कि जामे सर्वे आखिरी मरहले में पहुंच रहा है। डाटा एंट्री काफ़ी अहम है, इसमें किसी तरह की गलती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में डोर लॉक या फिर घर पर दस्तयाब न होने से मसाइल खड़े हो सकते हैं, इसलिए फ़ोन कॉल करके उनको सर्वे के बारे में बताएं। देही इलाकों में नकल मकाम करने वालों की तफसीलात हासिल करें। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि रियासत में 90% सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने ओहदेदारों को सर्वे मुकम्मल होने के दौरान तफसीलात को कंप्यूटराइजेशन करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बाज़ अजला में सर्वे मुकम्मल हो चुका है, बाज़ अजला में 90% से ज़्यादा सर्वे मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि तफसीलात को कंप्यूटर में लोड करते वक्त एहतियात से काम लें। उन्होंने कहा कि शुमार कुनिंदगान की जानिब से दिए गए तफसीलात का जल्द से जल्द डाटा तैयार करें। उन्होंने कहा कि सर्वे के कागजात को हिफाजत से रखा जाए। उन्होंने कहा कि 1,16,93,698 मकानात की निशानदही की गई है। अब तक 1,05,03,257 मकानात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सर्वे की तफसीलात कंप्यूटर में लोड होने का काम भी शुरू हो चुका है। 2,61,384 मकानात की तफसीलात कंप्यूटर में अपलोड की जा चुकी हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जीएचएमसी हदूद में सर्वे जारी है। जीएचएमसी में 25,05,517 मकानात का सर्वे किए जाना है और अब तक 17,47,056 मकानात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है।
GHMC में सिर्फ 70% सर्वे का काम मुकम्मल हुआ है। तेलंगाना में जामे सर्वे का सिर्फ हुकूमत ढोल पीट रही है। अपोजिशन की कोई तनकीद नहीं है और न ही अवाम में कोई हलचल है। हुकूमत का दावा है कि रियासत में 90% सर्वे मुकम्मल हो चुका है और GHMC में 70% काम मुकम्मल हो चुका है। इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जिस तरह प्रजा पालना प्रोग्राम में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जामे सर्वे को लेकर अवाम में कोई तजस्सुस नहीं है। हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है। मर्दमशुमारी ज़ोर शोर से जारी है। किसी भी अहम बात पर माशरा बहस चाहता है और एक दूसरे से मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन इस बार अवाम जामे सर्वे के बारे में बहुत कम मालूमात रखती हैं। जहां तक सरकारी तौर पर जामे सर्वे का जायजा लिया जाए तो हैदराबाद शहर में उर्दू ज़बान ज़्यादा बोली जाती है। ये सर्वे के सवालात उर्दू में मौजूद ही नहीं हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ इलाकों में सर्वे के फॉर्म तक नहीं मिले। दूसरी बात, शुमार कुनिंदगान भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि यह सर्वे क्यों किया जा रहा है और इसके क्या फ़ायदे होंगे। हुकूमत के कहने पर अवाम पूरी जिम्मेदारी के साथ सर्वे में तफसीलात फराहम की है। हुकूमत ने 85,000 अमला सर्वे के लिए तैनात किया है। पहले मरहले के तहत मकान पर स्टिकर लगाना था, लेकिन कई मोहल्लेजात में अब तक स्टिकर नहीं लगाए गए। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि शुमार कुनिंदगान अपने तौर पर फॉर्म्स को पुर करने का काम कर रहे हैं। जामे सर्वे को लेकर अवाम संजीदा नहीं है। KCR के जामे सर्वे से अवाम को कुछ नहीं मिला था। कांग्रेस के सर्वे से भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रजा पालना फॉर्म का तल्ख तजुर्बा अवाम के सामने है। ऐसा भी देखा गया है कि जामे सर्वे फॉर्म्स सड़कों पर पड़े देखे गए। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने धान की खरीदी मराकज का अचानक दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने धान की खरीदी मराकज पर पहुंचने के बाद किसानों से बात की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस बार धान की काश्त अच्छी हुई है। इस मौके पर किसानों ने कहा कि धान की खरीदी हो रही है, लेकिन वक्त पर लॉरी दस्तयाब न होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस पर उत्तम कुमार रेड्डी ने अमले और आला ओहदेदारों को फ़ोन करते हुए किसानों की मुश्किलात से मुताल्लिक़ कहा कि ट्रांसपोर्ट में ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने धान की नमी की जांच करने वाली मशीन का भी जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ किसानों से रास्त बात करके तफसीलात हासिल की। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस के आहनी पंजे से तेलंगाना को आज़ाद कराने के लिए फिर एक संकल्प दीक्षा करने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 60 साला तेलंगाना तहरीक पर KCR ने अपनी शनाख्त छोड़ी है। 2009 नवंबर 29 को गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की थी। उनकी भूख हड़ताल मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया था। तहरीक के दौरान जो रुकावटें थीं वही अब नजर आ रही हैं। KCR की उस भूख हड़ताल के जज्बे के साथ फिर एक बार कौमी जमातों के गर्दन झुकाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 33 अजला के केंद्र में पार्टी प्रोग्राम सीनियर और इंचार्ज संकल्प दीक्षा मुनक्किद करेंगे। 29 नवंबर को निम्स हॉस्पिटल में गरीबों और गरीब आवाम को खाना खिलाया जाएगा। 9 दिसंबर को मिर्चल में तेलंगाना तल्ली मुजस्समा नस्ब करेंगे। उन्होंने कहा कि KCR इन प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करेंगे। KCR से इज़हार तशक्कुर करते हुए ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने की डबल PhD दी जा सकती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में गारंटी के नाम पर धोखा दिया था। महाराष्ट्र में भी धोखा देने की कोशिश की है। रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा को देखते ही तेलंगाना की आवाम को जो धोखा दिया है वो याद आ गया। इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबक सिखाया गया। कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी को इससे सबक लेना चाहिए। आवाम से किए गए वादों को पूरा करें। रियासत में जमहूरियत का खून हुआ है। उन्होंने कहा कि नई स्कीमात का पता नहीं है। BRS जो स्कीमें दे रही थी इस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। हैदराबाद में दलित बंधु की रकम जारी करें। गैर कानूनी गिरफ्तारी मुकदमात की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में दलित बंधु के लिए जिद्दोजहद करेंगे।
बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में अपनी पार्टी की ताकत का मुजाहरा करेंगे। कविता ने जगतियाल में कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कविता ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने ले जाएंगे। कविता ने कहा कि जगतियाल की तरक्की को केसीआर ने अहमियत दी थी। इख्तिदार में आने के 10 साल में अवाम की मुखालिफत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि ओहदे से इस्तीफा दिए बगैर और न ही इस्तीफा दिए बगैर पार्टी तब्दील करने वाले रुकने असेंबली संजय को अवाम कभी मुआफ नहीं करेगी। कि कविता पीर के दिन सुबह जात पात की मर्दमशुमारी कमीशन को रिपोर्ट पेश करेंगी। बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी को पुलिस ने नोटिस जारी की है। हुजराबाद पुलिस ने कौशिक रेड्डी और दीगर को नोटिस जारी की है। बीएनएस दफा 35(3) के तहत हुजराबाद पुलिस ने नोटिस जारी की। दलित बंधु की रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए जारिया माह की 9 तारीख को धरना दिया गया था, जबकि इस धरने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बावजूद हाईवे पर कौशिक रेड्डी ने धरना दिया और अवाम को मुश्किलात से दो चार किया, जिसकी बिना पर पुलिस ने नोटिस जारी की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और अपोलो फार्मासिटी की निगरानी में 26 नवंबर को सुबह 11 बजे जॉब मेले मुनक्किद किया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के रूबरू एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में यह जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। अपोलो फार्मासिटी में फार्मिस्ट, असिस्टेंट फार्मिस्ट के 100 पोस्ट पर इस जॉब मेले में तकर्रुर किए जाएंगे। डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी डिग्री हासिल करने वाले जिनकी उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए, उम्मीदवार अपने सर्टिफिकेट्स के ज़ेरॉक्स के साथ रुजू हों। इससे मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए HR T रघुपति से फ़ोन नंबर 8247656356 पर रब्त किया जा सकता है। TMGOs भवन संगारेड्डी में बज़्म मुहिब्बान उर्दू संगारेड्डी के ज़र एहतमाम अदबी मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मोहम्मद महमूद अली असीर कर रहे थे। मुशायरे में मेहमान शोरा कराम सरदार सलीम, सैफ निज़ामी, तैयब पाशा कादरी, शुएब उल हक तालिब के अलावा दीगर शोरा कराम ने अपना कलाम सुनाकर दाद व तहसीन हासिल की। मुशायरे की निज़ामत जलील निज़ामी कर रहे थे। मुशायरे का आगाज़ हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद इब्राहिम इमाम ख़तीब मस्जिद बिलाल की क़िरात कलाम पाक से हुआ। बज़्म मुहिब्बान उर्दू संगारेड्डी के सदर मोहम्मद हाशिम अली और मोहम्मद मोइज़ुद्दीन मोइज़ तंजीम के मोतमद ने परस्ताराने इल्म अदब उर्दू का इस्तक़बाल किया। TJ प्रकाश रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हाफिज शेख शफी रुकन बलदिया संगारेड्डी ने मुशायरे के लिए ताउन किया। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत करके लुत्फ अंदोज हुए। बालापुर पुलिस हदूद में रात देर गए तक होटलों में खाने वालों के खिलाफ काउंसलिंग मुहिम शुरू की गई है। आजकल अवाम में एक बुरी बीमारी पैदा हो गई है कि वो 3 टाइम के अलावा रात देर गए भी खाने की लत में मुब्तला हो गए हैं। इस सिलसिले में होटल्स के मालिकीन भी जिम्मेदार हैं, जो करीब रात भर होटलें खुली रखते हैं, जबकि मुकर्ररा वक्त के गुजर जाने के बाद वो अगबी हिस्से में एक दरवाज़ा खुला रखते हैं जहां से लोग होटल में दाखिल होकर खाना खाते हैं। होटलों के औकात में थोड़ी नरमी बरते जाने का ये तो मकसद नहीं है कि खुली छूट दी जाए। इस सिलसिले में बालापुर पुलिस की जानिब से एक अनोखी मुहिम शुरू की गई, जिससे वो लोगों को रात में देर से खाने के नुकसानात से वाकिफ करवाएगी। इस सिलसिले में एक ताज़ा वाक़े में रचाकुंडा पुलिस ने मंदी की होटलों में रात 1 बजे के बाद बैठकर खाना खाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। अलावाजी एराकुंटा, शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ के करीब की तमाम मंदी की होटलों की भी चेकिंग की गई, जो बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में आती हैं। मस्कुरा काउंसलिंग को शहर के दूसरे पुलिस हदूद तक तोसी दी जाए तो अवाम को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल से बचाने के लिए भी ये कारआमद साबित होगी। नीलोफर हॉस्पिटल का सिक्योरिटी अमला न सिर्फ सिक्योरिटी में नाकाम हो गया है, बल्कि वो तमीज़ और तहजीब से भी आरी नजर आता है। एक वाक़े में मुतासरा शख्स ने सिक्योरिटी के एक मुलाजिम से ख़वातीन के साथ तमीज़ से बात करने की तलक़ीन की तो सिक्योरिटी का मुलाजिम उनके साथ बदतमीज़ी और नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बदकलामी करने लगा। इस सिलसिले में दवाखाने की इंतज़ामिया को सख्त नोट लेते हुए सिक्योरिटी में लापरवाही और बदतमीज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चार मीनार और मक्का मस्जिद को देखने आने वाले सयाह व आवाम की गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह फराहम न करने के सबब चंद मफादात हासिला सरकारी ज़मीन पर धड़ल्ले से पेड पार्किंग का कारोबार चला रहे हैं और हर दिन हज़ारों रुपए का कलेक्शन कर रहे हैं। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर चार मीनार के अतराफ वाक़े चार कमानों की तज़यीन, गुलजार हाउस की खूबसूरती के अलावा काली कमान की तज़यीन के साथ इससे मुत्तसिल खानगी इमारतों को हासिल करते हुए एक रास्ता बनाया गया था। इस रास्ते पर सड़क बिछाने का काम बाकी है, लेकिन इस सरकारी मिल्कियत के रास्ते को चंद मफादात हासिला खानगी पेड पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टू व्हीलर के लिए फी घंटा 20 रुपए, फोर व्हीलर के लिए फी घंटा 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। सयाह व अवाम ये समझ रहे हैं कि यह जगह खानगी पेड पार्किंग की है। सरकारी पार्किंग न होने से गाड़ियां लाजमी तौर पर यहीं पार्किंग की जा रही हैं। मफादात हासिला से जुड़े एक शख्स ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि सरकारी आराजी पर यह पेड पार्किंग मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस के इल्म में रखकर ही चलाई जा रही है। इस गैर मजाज पेड पार्किंग को उरूज देने ट्रैफिक पुलिस उल्टा मदद कर रही है, इसलिए कि काली कमान के जुनूब मगरबी सिमत एक काली जगह पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने यहां नो पार्किंग का न दिखने वाला बोर्ड लगाया है। नो पार्किंग बोर्ड से नावाकिफ जब यहां गाड़ियां पार्क करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस टोइंग के जरिए उनकी गाड़ियां उठाकर ले जाती है। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद इसके रूबरू शुमाल मगरिब सिमत वाक़े गैर मजाज पेड पार्किंग को फ़रोग़ देना है। इस सिलसिले में जब ट्रैफिक के मुतल्लिका आला अहदेदार से रब्त पैदा किया गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और उल्टा सवाल किया कि क्या कहाँ है खानगी पेड पार्किंग। दूसरी तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अहदेदार से इस सरकारी रास्ते की बाबत पूछा गया तो उन्होंने भी नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस इलाके की खानगी इमारतों को हुसूल आराजी के तहत भारी मुआवजा देकर हासिल किया गया। यहाँ सड़क बिछाने का काम मुत्तसिल पानी के एक हौज की वजह से रुका हुआ है। पानी का यह हौज काफ़ी कदीम बताया जाता है। इस हौज के बारे में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो GHMC की जानिब से सड़क बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ से गाड़ियों की एक सिमत से रवानगी होगी। खानगी पेड पार्किंग के बारे में उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि चंद अफराद जिसमें एक मुकामी इमारत का मालिक भी है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के एक मकान पर छापा मारकर सट्टा खेलने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ आयतुल्लाह पर कार्रवाई करके जुए के ऑर्गेनाइजर 56 साला मोहम्मद रफीक को भी गिरफ्तार किया है, जो 3 कार्ड्स गेम को किशनबाग के इलाके में अपने मकान में चलाता था। टास्क फोर्स ने इसके कब्जे से करीब 21,000 रुपए नकद रकम, जुए के कार्ड्स के 5 डिब्बे और 52 कार्ड्स भी जब्त किए। टास्क फोर्स ने जब्त अशिया के साथ मुलजिमीन को SHO बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मुलजिमीन से मजीद पूछताछ की जाए। नामपल्ली पुलिस ने नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा होने वाले 9 मौलूद को अगवा कुनिंदों से के जंगल से आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में छुड़ा लिया। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में नामपल्ली पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर CCTV कैमरों के फुटेज से मगवैया लड़के की निशानदही की, जिसे एक जोड़ा करनूल ले जा रहा था। पुलिस ने हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब एक ओमनी गाड़ी पर छापा मारकर एक खातून और एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मगवैया लड़के को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने ज़ेर हिरासत जोड़े से पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले में नीलोफर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर भी अवाम उंगलियां उठा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार नशे में धुत था। इसने हंगामा खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने चंपापेट MAR गार्डन के पास एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़कर इसका टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस शराबी ने टेस्ट से बचने की कोशिश की। वो पुलिस के साथ आजिज़ी व मिन्नत करने लगा, लेकिन पुलिस अपना टेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, जिस पर पुलिस के अहलकार उसे वहां से उठाकर ले गए और उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस बड़ी मुस्तैदी से कोशिश कर रही है, लेकिन नशे के आदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या इसका मुकम्मल नशाबंदी ही एक हल हो सकता है?
फलकनुमा पुलिस स्टेशन के करीब पेश आए हादसे में लॉरी की टक्कर से कार को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि कार में सवार अफराद करिश्माती तौर पर महफूज रहे। कार के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो कार में जा रहे थे कि उनकी कार को एक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। उनका कहना था चूंकि वो सीट बेल्ट लगाए हुए थे, जिसकी वजह से हादसे में बच गए। फलकनुमा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस को लॉरी ड्राइवर की तलाश है। पुराना पुल पारदीवाड़ा के इलाके में कचरे के अंबार में आग लग गई। शहर के 2 फायर इंजन्स ने मुकामे वाक़या पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने की वजह का ताहाल इल्म नहीं हो सका, लेकिन शुबा किया जा रहा है कि चंद जुआरी वहां बैठकर जुआ खेलते हैं, जिसकी वजह से कचरे की ताफुन से बचने के लिए इन लोगों ने कचरे में आग लगाई होगी। आग इस कदर मुहीब थी कि इसका धुआं दूर दराज के इलाकों से भी देखा गया। बताया जाता है कि जीएचएमसी ने वहां कचरे का डंपिंग यार्ड बना रखा है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। सुल्तान बाजार पुलिस ने हवाले के जरिए रकम मुंतकिल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो 6,69,000 रुपए किसी को पहुंचाने जा रहा था। इस सिलसिले में हनुमान टेकरी के इलाके में पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई की और मुलजिम के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। पुलिस मुलजिम से इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। एकमता 9 दिसंबर तक अवाम में हुक्मरानी का जश्न मनाने वजीर आला का ऐलान। सेक्रेटेरिएट के रूबरू 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाब कुशाई। रियासत में जामे सर्वे 90% मुकम्मल। तफसीलात को कंप्यूटराइज करने के दौरान एहतियात बरतें। हैदराबाद में 70% सर्वे मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास।
जामे सर्वे को लेकर हुकूमत संजीदा, अवाम में कोई तजस्सुस नहीं। शुमार कुनिंदगान सर्वे से नावाकिफ, उर्दू में फॉर्म्स न होने से अवाम को मुश्किलात। और रात देर गए होटलिंग करने वालों को पुलिस की काउंसलिंग, देर से खाने के तिब्बी नुकसानात से कराया जा रहा है वाकिफ। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।